Morning. After taking 2 year results, this is the final which we are going to start. And बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर से यंग स्टूडेंट्स के लिए। मैं चाहता हूँ कि यंग स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड वन टॉपिक विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड नॉट ओनली यंग स्टूडेंट्स, एवरीवन, हर एक के लिए। इवन आई फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक फॉर नेक्स्ट 30 minutes. So, well, the topic is, we call it is goal setting, लक्ष्य निर्धारित करना. You see what happens, we speak different languages. We come from different, say, families and environments and cultures. No matter what is our past, but what is important is your future. You cannot change your past, but definitely you can create your future. So for creating your future, you must understand what are goals, and goals are very important. I have read a book by Dr. Randy Marshall, who is considered to be one of the best experts on goal setting, and he has got students as governors and head of the nations, prime ministers, corporate leaders. They follow his sessions and lectures and workshops on goal setting. So what he has said is that there is a difference between desire and goal. For desires you have to pray, but for goals you have to work. Desires needs blessings, goals needs actions. They should be actions. Desires are unpredictable and unscheduled, not time bound, but goals are scheduled, time bound and fixed. Now see, Dr. Randy Marshall says there are three kind of people, and what I am going to tell is you should think about you are in which category. The first is that they do not know what they would like to do in their life. Seriously. The second is they know what they want to do it, but they will not do it. Many reasons are there. They are suffering from procrastination, easy life, why to work hard, and so I would say these are the second category. And third is they know what they want to do and they do it really. This is very important. You see, what happens is, let's talk first of all, what is a goal? लक्ष्य होता क्या है और क्यों इसको सेट किया जाए या उस पर काम किया जाए या उस पर वर्क किया जाए. Goals are something which we need, which we want to achieve, and which is very important. Goals के बारे में I would say, let's say, I will say, why have goals? क्यों goals होने चाहिए? क्या बगैर goals के ज़िंदगी नहीं चलती? बिल्कुल चलती है. पर आप लोग पिक्चरें देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, everything is goal oriented. Goal can be a dream, a task, a mission, something like this. So for goal setting you must have a starting point. From where do I start? For example, आपको दिल्ली जाना है from कानपुर, तो आपको starting point is your कानपुर, and then you set a goal that is Delhi. The first thing is starting point you must have, and secondly I will say that the end point, starting and end point, and it sets you in the right direction. आप यहाँ से जा रहे हो तो फर्स्ट स्टेशन नॉर्मली बड़े वीआईपी ट्रेन्स में इटावा आना चाहिए, बट अगर वो उन्नाव आएगा दैट मीन्स यू आर सिटिंग इन अ रॉन्ग ट्रेन. सो इट सेट्स यू इन द राइट डायरेक्शन, एंड you always can check your progress. What's my progress? कहाँ तक हम आए? And finally, अगर आपको लग रहा है you are on the wrong track, you can always change. You can change your goal.
and in the end, finally, I've reached. So these are certain things why I have goals. Now, Dr. Randy Marshall says that for goal setting, there are 3 categories of people. Think like I'm talking to you, whoever is listening this, watching this video. It's not audio. I like to talk on audio also because I'm very free. But in video, you have to be very conscious about your looks, your energy level, your excitement level. So the best thing is for me is I like live actions when I'm on stage, because I take up questions, objections, humor, and I reply there. Here I'm talking to a wall because I don't know, I'm not getting any response, but it hardly matters. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेज हो या कुछ भी हो. आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, आई वाज टेलिंग हिम, वो मेरे से बोला सर आप जूम पे क्यों नहीं ज़्यादा आते हो, आप तो इतने अच्छे स्पीकर हो, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इतना अच्छा यू आर सक्सेस, किताबें लिखी हैं. मैंने कहा यार शेर जो होता है ना टाइगर, वो 3 जगह पाया जाता है. पहला होता है पिंजड़े में, तो जूम मेरे लिए वो है कि जहाँ पिंजड़ा है, मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा मेरे पास रेंज नहीं है. दूसरा होता है सर्कस, जहाँ उसको ट्रेन किया गया है, वो वही रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा जो उसको ट्रेनिंग में मिला. और थर्ड होता है खुला जंगल. इफ़ यू रियली वांट टू वॉच अ टाइगर, जंगल जाओ, उसको वॉच करो दूर से बैठ के, यू विल कम टू नो लॉट अबाउट हिज हैबिट्स, हिज थिंग्स. सो बैक टू द टॉपिक. डॉक्टर रैंडी मार्शल सेज 3 कैटेगरीज हैं, उनमें से आप सोचो आप कौन सी कैटेगरी की हो. द फर्स्ट इज, ही सेज दैट 87 ऑफ द पीपल हैव नो गोल्स इन देयर लाइफ. 87% लोगों के जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होते. 10% ऑफ द पीपल हैव गोल्स, उनके गोल्स होते हैं. अब 87 प्लस 10, दैट brings to 97. So where are these 3 people, 3% of the people? They have written goals. अगर आपने अपना लक्ष्य कभी लिखा नहीं है तो वो लक्ष्य नहीं है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं. You must write your goal and don't write once, write as many times as possible. जितनी दफ़ा भी हो लिखो, आई दिस इज़ माई गोल 1. आई टेल यू कैसे कैसे गोल सेटिंग होना है, मैं उस पर अभी आऊँगा. बट अभी आई जस्ट से कि गोल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आई एम टॉकिंग टू यू. नाउ गोल्स आर डेस्टिनेशंस. गोल्स वो जगह है जो मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ मुझे जाना है. सो दे मस्ट बी वेरी स्मार्ट. नाउ गोल्स में मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये कोई बहुत नई नहीं है, वेरी कॉमन. Goals should be smart, and smarts are goals. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, and R stands for realistic, and T stands for time bound. If your goals are not specific, then it is not a goal. It should be very specific. It should be measurable. एक पजामे के नाड़े में और एक इंची टेप में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो पजामे का नाड़ा होता है वो अनएजुकेटेड होता है और इंची टेप इज़ एजुकेटेड. सो दिस इज़ द डिफरेंस. एंड द थर्ड इज़ अचीवेबल. अगर वो अचीवेबल है ऑन योर माइंड, देन इट इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली. जो गोल सेटिंग होती है वो सबसे पहले यहाँ होनी चाहिए. ऐसे ही नहीं बैठ के कर देना कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस, आई एम गोइंग टू दिस. दिस आर ऑल फालतू फंड की टॉक्स एंड विच आई डोंट फाइंड इंटरेस्टिंग. सो अचीवेबल होना चाहिए. देन इट कम्स एज रियलिस्टिक. इट लगे कि हाँ आई कैन डू इट. लाइक अगर आज मैं हूँ और आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक 6 abs, तो ये तो भैया नॉन अचीवेबल है, ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा है. Yes, you can give shape to your body, but not 6 abs. It takes at least 4 years of, and your age. So many things are there. And the 5th point was smart. Mein T stands for time bound. So I repeat, S is specific, M is measurable, A is achievable, R is realistic, and T is
time bound. So these are smart things. Now, most important, goals should be set not less than 90 days. ऐसा कहा गया है कि जो काम आदमी 7 दिन करता है उसका असर उस पर 21 दिन रहता है, जो काम 21 दिन तक लगातार करता है उसका असर उसके ऊपर 90 दिन रहता है, और जो काम वो लगातार 90 दिन तक करता है तो उसका असर उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए होता है. सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, डोंट गो फॉर 5, 6, 7, 8 days. Continuously go for 90 days. It will become, you will start feeling change, and that's going to be your motivation and inspiration. So I would say set specifically activity goals, not emotional goals. Goals में emotion डालो, but goals should be not emotional. मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, ये एक रियलिस्टिक गोल है. जीतने के बाद जो चीज़ें मुझे खुशी मिलेगी वो इमोशन बेस्ड है. सो इट शुड नॉट बी लेस देन से आई से 90 days. नाउ कम्स इज, मैं एक बात बोलता हूँ जो हिंदी में आप लोग के साथ बोलूँगा कि एक शेर है, अरे शेर नहीं है वो, एक क्या है पता नहीं, आई जस्ट स्पीक इट आउट. चांद को छूने की तमन्ना रखिए, चांद को छूने की तमन्ना रखिए, इसमें अगर आप चूक भी गए तो सितारे तो हाथ आएंगे. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कीप सेट बिग गोल्स, एंड इवन इफ यू मिस you will achieve some smaller ones. Now I will say how to check goals. There is a checklist. हर चीज़ की checklist होती है, बनानी चाहिए. आप काम क्या कर रहे हो, do lot of, I will say always, this is my goal setting workshop session. This is my boss. In the morning I write whatever I have to do in a day, and by the evening I see whether I have achieved it or not. So it's a daily checklist sort of a thing. So write daily small goals, review them in the evening. Suppose you have put 4-5 things in this and you have achieved 3-4, so your percentage of success is 70-80%, not bad. One day you will be doing 90%, someday you will be doing 100%, and someday it will be 0. So no problem. If you miss a goal on one day, set yourself that I'm going to achieve the next day. टालना नहीं. टालने की बीमारी बहुत खराब है. इसने इस दुनिया में जितना नुकसान किया है इतना किसी ने नहीं किया. So just, it's a disease. Procrastination is a disease. Get rid of it. You're suffering from procrastination. टालना, हर चीज़ को टालना. So अगर कोई चीज़ आपका चेकलिस्ट में मिस हो जाती है, रिव्यू ऑन अ संडे, सिट ऑन अ संडे, सी व्हाट इज़ योर, डू ऑडिटिंग. शॉर्ट मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे तक इतने गोल्स लिखे थे डेली, 4, 5, 6 गोल, 7, और कितने सक्सीड हुए अचीवमेंट में, और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कि मेरा सक्सेस रेट क्या है. नेक्स्ट वीक और इम्प्रोवाइज होगा, उसके बाद और इम्प्रोवाइज होगा, उसके बाद और इम्प्रोवाइज होगा. धीरे धीरे you will be a master of goal setting. मतलब when I get up in the morning, I decide everything, I plan everything, and by the night I am sleeping very good. कि दिन भर में जो सोचा था, yes, कभी कभार हो जाता है 70-80% goals I achieve in my daily basis. सब कभी कभी नहीं होते, कभी कभी 100 हो जाते हैं. So I always say the future belongs to those who see possibilities before they become obvious. अभी से सोच लो कि क्या करना है जिंदगी में, वरना वो फिर ऑब्वियस हो जाएगा. To be without a goal is like you are physically alive, but वैसे आप मरे हुए हो अगर आपके गोल्स नहीं है ज़िंदगी में. आई ऑलवेज लाइक टू टॉक टू पीपल हु आर वेरी फ्यूचरिस्टिक, हु टॉक्स अबाउट फ्यूचर, ये करूँगा वो करूँगा, बड़ा एक्साइटमेंट उनके कॉन्फिडेंस में होता है. और कुछ होते हैं जो बड़े ढल, डाउन, लो, नो एनर्जी, दुखी आत्मा, जहाँ जाएंगे वही स्प्रेड कर देंगे.
तो that is not good, I mean to say. Setting and pursuing goal is very exciting. When you set a goal and when you finally achieve, the excitement is damn good. And that is the most important to increase your immunity, eventually, which is fighting with COVID. So see, what happens is, why I am doing all these lectures, I'm not a very publicity hungry person. I'm not a money centric person. I'm more into that I should transfer my knowledge to others as soon as possible. So being for last 1 year I'm not taking any sessions. So I was thinking that कहीं share अपना धारणा तो नहीं भूल गया. So I started to record small sessions. और अभी मैंने 3-4 दिन वीडियोस पहले डाले. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने फेसबुक पे और उसने बस डैम गुड सर, आपको भले ही छोटे स्क्रीन पे देख के अच्छा तो लगा. सो दैट इज इट. एंड यू विल रीच वेयर यू आर हेडिंग, एंड इफ यू आर नॉट हेडिंग यू विल रीच नो वेयर. ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह उठ के जाके बैठ गए स्टेशन पे, यार जाना है, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, तो क्या फ़ायदा. इट्स नॉट गुड. There is one thing which I think is, I say, why people don't set goals. So many people don't set goals because they don't think they are worthy of big success. एक अच्छा जीवन, एवरेज, मीडियोकर, स्ट्रगलिंग जीवन ही जीना चाहते हैं. विनर्स, अचीवर्स, सक्सेसफुल पीपल का, they are not into that. And many people do not set goals because fear of failure. हार जाएंगे, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या. अरे यार तुम वो सब छोड़ो. विनर कहाँ पे अपना गोल सेट करता है? अंदर. वो दुनिया की परवाह नहीं करता और ना तुम करो, प्लीज. सो वन ऑफ द रीजन व्हाई डोंट सेट गोल्स आर दे डोंट सी द वैल्यू ऑफ इट. हर चीज़ की वो वैल्यू करते हैं. उनको बड़ा आज इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ऐसे क्यों हो जाएगा, इतना ज़्यादा होता है कि उनके साथ बैठ के मुझे बड़ा, आई फील बड़ा फ्रस्ट्रेटेड. एंड अनदर रीज़न व्हाई पीपल डोंट सेट गोल्स आर दे डू नॉट नो हाउ टू सेट गोल्स. दिस इज़ वेरी बिग ट्रेजेडी. आई गेट कम अक्रॉस मैनी स्टूडेंट्स. बहुत से लोग मिलते हैं, सर आप गोल सेटिंग के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, क्या करना है. टेक अ पीस ऑफ पेपर. ओ इंसिडेंटली व्हेन यू आर गोइंग टू watch this session lecture again, then भैया अगली बार कागज़ पेन लेके बैठना. सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर मेरी बातें यहाँ जाएं, अच्छा है, यहाँ ज़्यादा जाएं, तो दैट्स बेटर फॉर मी. एक बहुत अच्छी हिंदी की कहावत है कि औसतन आदमी ज़्यादा की आस नहीं करते. एवरेज पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट मोर and unfortunately they get little. उनको और भी कम मिलता है. So whenever you are setting a goal, बड़ा तय करना, छोटा नहीं. Don't go for small things. And now the goals का पीरियड है कि कब तक होने चाहिए. See, minimum is 90 days. Then you can go for 6 months, then 1 year, then 3 years, and then 5 years. And the last is 10 years. बस इससे ज़्यादा नहीं करना. 10 years में दुनिया यहाँ से वहाँ चली जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना. और ना फॉर यंग स्टूडेंट्स आई हैव सेट 7 goals एंड मेरी ज़िंदगी का मैं अपना 7वां गोल पे अब काम कर रहा हूँ. तो फर्स्ट गोल इज़, आई ऑलवेज से, स्टडीज़ एंड सेल्फ ग्रोथ. खूब पढ़ो, अपने को बेहतर बनाओ. द सेकेंड इज डू अ जॉब और इनटू अ प्रोफेशन और बिजनेस, वट एवर इट इज, जो भी तुम्हें अच्छा लगे. तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कोच, तुम्हारे मेंटोर, तुम्हारे गाइडेंस के ऊपर है कैसे तुमको मिली. देन व्हेन यू आर डूइंग जॉब, बिजनेस, बाय अ कार, देन अ हाउस. तो फर्स्ट इज स्टडीज, सेल्फ ग्रोथ. Second is car.
Second is job and profession. Third is car. Fourth is house. And fifth is have some bank balance. Enough. Disposable income for holidays, for whatever you want to buy. मैं किसी ज़माने में एक लैपटॉप को तरसता था कि यार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ. I'm talking about years back, say 20 years back. And today I've got 3 laptops and they have got different things. So money से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे. Then have a good money, that is bank balance. And then make lot of foreign trips. जितना बाहर जा सको उतना अच्छा है. जब ये 6 गोल्स अचीव हो जाएंगे, देन यू मस्ट स्टार्ट रिटर्निंग टू द सोसाइटी. समाज को वापस दो, क्योंकि यही सब आपने समाज से पाया है. ओके, बस अब ख़त्म करूँगा. मैं आखिरी में एक शेर सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. गोल सेटिंग में मैं अक्सर सुनाता हूँ कि जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते. जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड डू गुड इन योर लाइफ, एंड सी यू अगेन टुमारो.